Hello there, this is our second lecture on distributed operating system. In previous lecture, we covered the introduction to distributed system, function of distributed systems, and introduction to operating system. After that, we covered difference between centralized and distributed system. So in this lecture, on today's lecture, we are going to learn design issues in distributed systems and the key goals of distributed operating system. So let's get started with the today's lecture. So first is design issues in distributed operating system. So as we already discussed about what are the distributed system, but still we are going to discuss some points. Distributed system is any network structure that consists of autonomous computers that are connected using a distribution middleware. Distribution system facilitate sharing different resources and capability to provide user with a single and integrated coherent network. The distributed system information is defined as a number of computers which are independent from each other linked by a common network for sharing information among them. ओके सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली होते क्या हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होते क्या हैं. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं यूजिंग लिंक्ड और यू कैन से लिंक्ड बाय अ कॉमन नेटवर्क. इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, अपने डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. बट जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, दे हैव देयर ओन प्रोसेसर, दे हैव देयर ओन मेमोरी. ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर मेमोरीज एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर प्रोसेसर ऑन अदर systems. Okay, so design issues in operating systems are heterogeneity, openness, concurrency, security, failure handling, scalability, transparency. So we'll discuss this one by one. Okay, so the first point is heterogeneity. Heterogeneity means consisting of dissimilar or diverse ingredient or constituent. Heterogeneity का अगर layman language में अगर आपको meaning पता हो, that is अलग अलग टाइप की चीजें जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, राइट. सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हेटेरोजेनिटी का क्या मतलब हुआ. इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हेटेरोजेनिटी इज अप्लाइड टू नेटवर्क, computer hardware, operating system and implementation of different developers. The distributed system contain many different kind of hardware and software working together in corporate fashion to solve problem. We set up protocols to solve this heterogeneity. Heterogeneity का मीन अगर आप distributed system में देखते हैं तो multiple system जो होते हैं वो आपस में connected होते हैं, right. तो for example there are 3 to 4 nodes are connected in a network. So the first node is using like Windows operating system, second one is using as a Linux as a operating system, and third one is using as a using a Mac operating system, right. So they all have their own processing powers, they have their own softwares, right. हर एक का अपना जो capability है वो different होगी, right. So they all are connected through a common network, but they all have their different operating system, they all have their different software, but working together in a cooperative fashion to solve a problem. What एक cooperative way में जो है वो काम कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सिस्टम है उनमें हेट्रोजेनिटी है बट दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. तो वो आपस में काम कैसे कर पा रही हैं, जब उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट आर डिफरेंट, देयर प्रोसेसर्स आर डिफरेंट, देयर कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट. सो वो क्या यूज करते हैं, दे आर यूजिंग अ मिडलवेयर. मिडलवेयर का मतलब क्या है, दे आर यूजिंग द कंपोनेंट यूज फॉर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज मिडलवेयर. मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर इज सेट ऑफ सर्विसेज दैट एनेबल एप्लीकेशन एंड एंड यूजर टू इंटरेक्ट विद each other across a heterogeneous distributed environment. So middleware का काम क्या है, middleware provide the interaction between all the devices between the application and the end user. Okay, so middleware क्या करेगा, एक set of rule set करेगा डिफरेंट सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने में, चाहे फिर उनकी प्रोसेसिंग अलग हो, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो, उनकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट हो. Okay, so this is the heterogeneity or main issue in distributed operating system. Okay,
Then second one is openness. Openness क्या है? The openness of a computer system is a characteristic that determine whether the system can be extended and re-implemented in various way. The challenges to designer is to tackle the complexity of distributed system consisting of many component engineered by different people. Open distributed system में क्या होता है? आप जो हमारा सिस्टम होता है एक हिसाब से ओपन होता है, उसमें आप नंबर ऑफ न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम ऐड कर सकते हैं. तो जब आप नंबर ऑफ यूजर ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ सिस्टम उसमें ऐड कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही. क्यों? क्योंकि ओपन distributed system can be constructed from heterogeneous hardware and software possibly from different वेंडर. जो हेट्रोजिनिटी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताई, उसमें क्या था कि हर एक जो सिस्टम है उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटीज जो डिफरेंट है, राइट. पहले ही वो सब जो है वो बड़ी मिडल वेयर जो है वो सेट ऑफ रूल उस पर अप्लाई कर रहा है. आफ्टर दैट दे विल एबल टू कंटिन्यू विद ईच अदर. अगर आप उसमें नए सिस्टम्स ऐड कर रहे हो, नए यूजर्स ऐड कर रहे हो, तो वो हो सकता है उनकी भी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, या उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट हो. डिफरेंट वेंडर्स की वो जो सिस्टम्स हैं वो बनाए गए हैं, उन्होंने कुछ और उसमें कैपेबिलिटीज़ दी हों. तो ये जो होगा ये मिलके एक बहुत ही मेन इशू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बन जाएगा, राइट. तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये क्या होता है? ये जो सिस्टम होते हैं वो फंडामेंटली बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट होते हैं वो एक बार डिसाइड नहीं होते हैं. वो ओपन होने की वजह से कभी भी कोई भी हार्डवेयर हम उसमें ऐड कर सकते हैं, राइट. तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है वो अलाउ नहीं करता है सिस्टम को ऐड मोर सॉफ्टवेयर विच हैव अनदर कॉन्फ़िगरेशन. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ डेवलपर्स को कुछ रूल्स या कुछ सेट ऑफ रूल्स देने पड़ते हैं ताकि वो उनको जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है उसमें ऐड कर सके. अंडरस्टूड. बट अगर डायरेक्टली डेवलपर चाहता है कि वो नेटवर्क में उसको कनेक्ट कर दे, तो उसके लिए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, राइट. सो इट इज़ ईजियर फॉर डेवलपर टू ऐड फीचर और रिप्लेस सब सिस्टम इन द फ्यूचर, बट करंटली इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम these are unpredictable. ठीक है. Example, Twitter and Facebook have API that allow developer to develop their own software interactively. फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी इस पे हो सकता है कि जो ये ओपननेस का प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाए. ओके. आफ्टर दैट द पॉइंट इज कंकरेंसी. कंकरेंसी का जनरल मीनिंग क्या है? जब दो से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे एक ही काम कर रही हैं और एक ही रिसोर्स को यूज करने का ट्राई कर रही हैं, राइट. कंकरेंसी क्या होता है? कंकरेंटली दो चीजें एक ही चीज पे काम कर रही हो, राइट. बोथ सर्विसेज एंड एप्लीकेशन प्रोवाइड रिसोर्सेज दैट कैन बी शेयर्ड बाय क्लाइंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. देयर इज देयरफॉर अ पॉसिबिलिटी दैट सेवरल क्लाइंट विल अटेम्प्ट टू एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स एट द सेम टाइम. वो सेम टाइम पे एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रही हैं. लाइक हो सकता है वो रीड राइट अपडेट सेम टाइम पे करने का ट्राई कर रही हैं. तो उससे क्या होगा? नेटवर्क में इशू जनरेट होगा. तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हर एक रिसोर्स जो होता है वो कंकरेंट इन्वायरमेंट में सेफ होना चाहिए, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी सिस्टम जो है जब रिसोर्स को शेयर करना चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो वो उसको करेक्टली ऑपरेट कर पाए इन कंकरेंट इन्वायरमेंट. कंकरेंट इन्वायरमेंट मतलब जब दो नंबर ऑफ यूजर या दो नंबर ऑफ डिवाइसेस और दो नंबर ऑफ नोड्स सेम रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रही हैं, तो जो रिसोर्स होना चाहिए वो हमारा इस टाइप में सेफ होना चाहिए कि वो करेक्टली शेयर भी हो सके और उस पर कोई अटैक भी ना हो सके, एंड कंकरेंटली दोनों ही जो डिवाइसेस हैं उसको यूज कर सके. ठीक है. Object that represent a shared resource in distributed system must be responsible for ensuring that it operates correctly in concurrent environment. This applies not only to serve but also to object in application. Therefore, any programmer who take an implementation of an object that was not intended for use in distributed system must do whatever necessary to make it safe in a concurrent environment. Okay. After that, the point is security. Security
डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की बात ही नहीं है, किसी भी सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। वी नो दैट मल्टीपल प्रोसेसर, सॉरी, we know that the security is the most important and most common aspect of every system, not only for distributed system, right? So security के पर्पज से अगर हम बात करते हैं तो in distributed system the general security attack on distributed systems are eavesdropping, after that masquerading, after that messaging tampering, after that denial of services. The most common attack on the distributed system is denial of services. So what is denial of services? Denial of services, let's take an example, a small example. We have a website which allow 200 user in a one day, or you can say 1 hour, whatever you want, you can take that example. So in my example I'm taking a small website which allows 200 यूजर पर डे, ओके। उसमें आप 200 जो यूजर हैं वो ही वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वो यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। और किसी भी वेबसाइट या किसी भी प्रोजेक्ट का डेवलपर को आइडिया होता है कि वो कितने नंबर ऑफ यूजर उसको यूज करेंगे। आफ्टर दैट दे डू अपडेशंस, बट स्टिल जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर उसको यूज करने वाले हैं। तो डिनायल ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है, जो हैकर है या जो भी बॉट है वो अपनी उस सर्विसेज जो उसकी कैपेसिटी है, लाइक 200 यूजर उसकी कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगा 300 यूजर एट सेम टाइम वहां पे सेंड करेगा टू एक्सेस दैट डिवाइस। जब कैपेसिटी से ज्यादा यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो वेबसाइट क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, राइट। सो दिस इज डिनाइल ऑफ सर्विसेज। आफ्टर दैट ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है, जब एक यूजर सर्वर के साथ कोई मैसेज एक्सचेंज कर रहा है, हो सकता है कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड वो मैसेज हो, तो अगर जो बॉट है, जो हैकर है, वो सीक्रेट को इंफॉर्मेशन को गेन करने का ट्राई करता है, दैट इज ईव्सड्रॉपिंग। मास्करेडिंग इज मेकिंग अजम्पशन ऑन द आइडेंटिटी ऑफ यूजर, ठीक है। आफ्टर दैट मैसेज टेम्परिंग क्या होता है, जो भी कोई मैसेज गया है उसके कंटेंट को चेंज करना। So these all type of attacks are possible in distributed operating system, ठीक है। Many of the information resources that are made available and maintained in distributed system have high instinct value to their user. The security is therefore the considerable importance. जो कोई भी डेटा है, चाहे वो किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, किसी कंट्री से रिलेटेड कोई डेटा है, सिक्योरिटी जो होती है वो मेन पर्पस होती है ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, राइट। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज इंडिविजुअल। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब तक किसी पर्सन को उस चीज को एक्सेस करने की ऑथराइजेशन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब वो डेटा जो है वो कोई अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए हमें यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी प्रोटेक्शन अप्लाई करनी पड़े हमें अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। आफ्टर दैट इज इंटीग्रिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल्ट्रेशन एंड करप्शन। कोई भी डेटा को ऑल्टर ना कर सके या डेटा को करप्ट ना कर सके। अवेलेबिलिटी क्या है, फॉर द ऑथराइज यूजर, जो डेटा एक्सेस है वो ऑथराइज यूजर को ही अवेलेबल हो, राइट, कोई भी और आके उसको इंटरफेयर ना कर सके। तो सिक्योरिटी को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे? सो आई एम गिविंग यू द सोल्यूशन विद इश्यूज। सो सिक्योरिटी हैंडल कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होती है? एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात बताऊं, अपने घर से आप निकलते हैं तो अपने घर पे आप एक लॉक लगा के जाते हैं, राइट। लॉक के लिए एक चाबी होती है, वही चाबी से दरवाजा खुलता है। वो कंडीशन अलग है कि चोर ताला तोड़ के आ जाए, बट स्टिल एक चाबी होती है आपके पास, एक की होती है जिससे आप उसको बंद कर सकते हैं, और एक की होती है जिससे आप उसको ओपन कर सकते हैं, राइट। सो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज द सेम एज दैट लॉक प्रोसेस। इंक्रिप्शन, जब आप किसी डेटा पे इंक्रिप्शन अप्लाई करते हो तो आप एक की सेट कर देते हो, एंड दैट की इज यूज टू अनलॉक और डिक्रिप्ट दैट मैसेज, ओके। सो कुछ एक की होगी जिससे आप डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, एंड द सेम की इज अप्लाइड फॉर डिक्रिप्टिंग दैट डेटा। इससे क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो सिक्योर होगा, राइट। आफ्टर दैट द पॉइंट इज फेलियर हैंडलिंग।
फेलियर हैंडलिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत अच्छे से हैंडल की जाती है। बेसिकली 2 जो स्टेप्स हैं इसमें यूज किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिटेक्ट द फेलियर एंड सेकेंड इज टेक सम रिकवरी एक्शन, राइट। जो कॉमन अप्रोच होती है डिटेक्टिंग फेलियर की वो एंड टू एंड टाइम आउट होती हैं, राइट। मतलब टाइम आउट का यूज करके हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फेलियर जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बट क्या ये टाइम आउट्स एक्यूरेट होते हैं? किसी को नहीं पता, राइट। टाइम आउट जो होते हैं मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं, बिकॉज जो प्रोसेस होती है वो अनरिस्पॉन्सिव होती है। मतलब लाइक समटाइम ये हो सकता है कि हमें उसका रिस्पॉन्स पता नहीं है कि लाइक वो प्रोसेस जो है वो फेल होने वाला है या वो जो प्रोसेस है वो पास होने वाला है, राइट। सो उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम आउट्स होगा वो बिल्कुल इनएक्यूरेट होते हैं। देखिए अगर हमने टाइम आउट को चूज किया है, टाइम आउट बहुत हार्ड होते हैं। अगर मान लीजिए आपने कम टाइम चूज किया तो हो सकता है कि प्रोसेस ने पूरा अपना प्रोसेस किया ही नहीं, जल्दी जल्दी काम फिनिश किया और आपको एक इनएक्यूरेट रिजल्ट दे दिया, राइट। और लॉन्ग टाइम आउट क्या हो सकते हैं, अगर हो सकता है प्रोसेस छोटी हो और उसको आपने लॉन्ग टाइम आउट दे दिया, देन द सिस्टम विल वेट अननेसेसरी। तो क्या होगा, हम वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे बिना मतलब के, क्योंकि प्रोसेस तो कम टाइम में खत्म होने वाली थी, राइट। सो जो टाइम आउट्स होते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं। Computer systems sometimes fail when fault occur in hardware or software program may produce inaccurate result or may stop before they have completed the intended computation, right? Failure in distributed system are partial, that is some component fail while other continue to function, therefore the handling of failure is partially difficult. So जो fault handling है वो partially difficult हो जाती है। तो इसका solution क्या है? When some fault occur in hardware, the software program, it may produce inaccurate result or they may stop before they have completed the intended computation. So corrective measures should be implemented to handle this case. तो उसको क्या करना चाहिए, अगर सिस्टम में एक बार कोई फॉल्ट आ गया तो उसको एक रीजनेबल वे में उस फॉल्ट को डिलीट करना चाहिए या मेंटेन करना चाहिए। वो क्या कर सकता है, ही कैन डू फॉल्ट मास्किंग। वो क्या करेगा, फॉल्ट को मास्क कर देगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिट्रॉइट होगी, थोड़ी सी डिक्रीज तो होगी, बट जो आपका डेटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो लूज नहीं होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड ऑप्शन ही हैज इज इट ग्रेसफुली फेल द सिस्टम। वो ग्रेसफुली जो सिस्टम है या जो उसने टाइम आउट दिया है उसको फेल कर दे। ओके, अंडरस्टूड। सो फेलियर हैंडलिंग कैसे इश्यू हुआ, क्योंकि हम टाइम आउट्स को यूज कर रहे हैं। टाइम आउट जो होते हैं वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं, क्योंकि टाइम आउट जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। शॉर्ट टाइम आउट जो होते हैं वो प्रॉब्लम को एग्जर्बेट कर सकते हैं। जो लॉन्ग टाइम आउट होते हैं वो सिस्टम को वेट करवा सकते हैं अननेसेसरली। ओके, आफ्टर दैट द पॉइंट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन लेमैन लैंग्वेज स्केलेबिलिटी मीन्स if it can handle the addition of users and resource without suffering unnoticeable loss of performance on increase and administrative complexity. Scalability का जनरल मीनिंग क्या होता है, स्केलेबिलिटी का जनरल मीनिंग होता है कि लाइक अगर आपने किसी सिस्टम में मल्टीपल न्यू सिस्टम ऐड किए, लाइक आपने कोई यूजर्स ऐड किए, रिसोर्सेज ऐड किए, तो जो आपका सिस्टम है स्केलेबल होना चाहिए। मतलब उसने अगर सिस्टम में कुछ न्यू यूजर ऐड भी कर दिए हैं तो भी सिस्टम जो होता है वो परफेक्टली फाइन काम करना चाहिए। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एट मैनी डिफरेंट स्केल रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंटरनेट टू इंटरनेट। A system is described as scalable if it will remain effective when there is a significant increase in the number of resources and the number of users. But the question arises, how the scalability is issue in distributed system, right? Does the system remain effective as of growth? As you add more component, more synchronization will be needed. अगर आपने सिस्टम ऐड किए किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सिस्टम में और ज़्यादा, तो आपको और ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, राइट? Scalability of the system should remain efficient even with significant increase in the number of user and resources connected. So this is a definition defined by B. Clifford Newman as a system is said to be scalable if it can handle the addition of users and resources without suffering unnoticeable loss of performance or increase administrator complexity, right? Scalability has three different
डायमेंशन, साइज, जियोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन। साइज क्या होता है? नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। अगर आपका साइज ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम हो जाएगी ओवरलोडिंग की, राइट। जियोग्राफी का, अगर डिस्टेंस बिटवीन यूजर एंड रिसोर्सेज, इसके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड क्या होगी? कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन, एज द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इंक्रीज मैनी ऑफ द सिस्टम नीड टू बी कंट्रोल्ड। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होने वाली है? एडमिनिस्ट्रेटिव मेस होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आपका मेस भी बढ़ता जाएगा। ओके। द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज सम aspect of distributor system that is hidden from the user. Access transparency, there should be no apparent differences between local and remote access in method. In other words, explicit communication may be hidden. Distributor system designer must hide the complexity of the system as much as they can. Adding abstraction layer is particularly useful in distributor system. ठीक है। So क्या होता है, अगर आपका सिस्टम जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइक यूजर को पता नहीं होना चाहिए, उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि ही वॉज वर्किंग ऑन अ सेंट्रलाइज सिस्टम और ही आर वर्किंग ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, राइट। उसको ऐसा लगना चाहिए ही इज वर्किंग ऑन अ सिंगल सिस्टम, बट एक्चुअली इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सो हम लोग यहाँ पे जब हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो हम एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऐड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में, ताकि प्रोसेस पीछे कुछ भी चल रहा हो आगे यूजर को पता ना चले कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, आप google.com सर्च करते हो, आप वाइल यूजर हिट अ सर्च ऑन google.com, उसको नहीं पता होता है पीछे कौन सा क्वेरी यूज हुआ है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, कौन सा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज हुआ है। वो जस्ट google.com टाइप करता है एंड जस्ट प्रेस एंटर बटन। ही डिडंट नो, he never notice what query goes through a complex process before Google show them a result. ठीक है। बहुत टाइप की जो ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, लाइक लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी, रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड पैरेललिज्म ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या हुई? द यूजर कैन नॉट टेल वेयर द रिसोर्सेज आर लोकेटेड। यूजर को नहीं पता होता है वो रिसोर्स कहाँ से ले रहा है, रिसोर्स का उसको उसके लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। रिसोर्सेज कैन मूव एट विल विदाउट चेंजिंग देयर नेम। रिसोर्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं उनका नाम बिना चेंज किए हुए। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी। नंबर थर्ड इज रेप्लिकेशन। द यूजर कैन नॉट टेल हाउ मेनी कॉपीज आर एग्जिस्ट फॉर द रिसोर्सेज। ओके। After that, concurrency transparency. Multiple user can share resources automatically. Really sorry. After that, parallelism transparency. Activities can be happen in parallel without user knowing. User को नहीं पता सेम रिसोर्स को वो भी एक्सेस कर रहा है और सेम टाइम पे कोई और भी उसको यूज कर रहा है। ठीक है। After that, the topic is goal of distributed operating system. So there are different goal of building distributed operating system. So the first one is connect a user and resources. Second is reliability. Third is computational speed up, and after that is communication. Third one is performance. Okay. So first one is connecting user and resources. So the main goal of distributed system is to make it easy for user to access remote resources and to share them with others in a controlled way. The main goal of distributed system is to make it easy for user to access remote resources and to share them with other in controlled way. Resources can be virtually anything. Typical example of resources are printers, storage facilities, data file, web pages and networks, right? सो कनेक्टिंग यूजर एंड रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ? कनेक्टिंग यूजर एंड रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि यूजर जो है उनको एक एक्सेस मिलना चाहिए, इजीली एक्सेस मिलना चाहिए, ताकि वो किसी भी रिसोर्स को किसी के भी साथ शेयर कर सकें। ओके। रिमोटली रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो मोस्टली रिमोटली ही हम लोग एक्सेस करते हैं, तो एक कंट्रोल्ड वे में वो किसी भी यूजर के साथ उनको शेयर कर पाए, बट द कंडीशन विल बी इट विल बी ऑन सेम नेटवर्क। ओके। एंड द रिसोर्सेज कैन बी वर्चुअली एनीथिंग। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, लाइक प्रिंटर्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, डेटा फाइल, वेब पेजेस एंड नेटवर्क। अंडरस्टूड?
After that, the point is reliability. Reliability, if you are saying in normal layman language, reliability क्या होती है? If one system fails in distributed system or any system, the remaining site can continue their work as they working earlier. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क के अंदर 10 स्पीसीज हैं, 10 सिस्टम्स हैं, ठीक है, एंड दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड दे आर वर्किंग ऑन सेम प्रॉब्लम. व्हाट हैपेंड इफ नोड 1 विल गेट क्रैश्ड, राइट? अगर 10 में से एक सिस्टम जो है हमारा वो क्रैश हो गया, तो 9 सिस्टम जो होते हैं दे विल कंटिन्यू देयर वर्क टू प्रोवाइड अ बेटर सिस्टम रिलायबिलिटी. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी क्या होता है, अगर हमारा एक सिस्टम फेल हो जाता है, एक साइट फेल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, तो बाकी जो साइट्स हैं वो कंटिन्यू करना चाहिए, उनका अपना जो काम है, वो जो वर्किंग है, उसी से हमें सिस्टम की एक बेटर रिलायबिलिटी का आइडिया आता है, राइट? If the system is composed of multiple large autonomous installation, the failure of one of them should not affect the rest. रिलायबिलिटी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. हम लोगों ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में एक प्रोजेक्ट बनाया, फाइनल ईयर का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज डेवलपिंग, सेकेंड वन इज डिजाइनिंग एंड थर्ड वन इज डेटाबेस कनेक्टिविटी. फर्स्ट स्टूडेंट विल डू डेवलपिंग, सेकेंड स्टूडेंट विल डू डिजाइनिंग वर्क एंड थर्ड विल बी डू database connectivity. So what happen if the database connectivity student get ill or he is not feeling fine? तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट तो नहीं रुकेगा. यू आर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट करोगे, द पर्सन इज वर्किंग ऑन डिजाइनिंग, ही विल कंटिन्यू हिज वर्क, राइट? अगर हो सकता है कि वो बंदा ठीक ही नहीं हुआ, द स्टूडेंट जो पहले बीमार हुआ था या उसका तबीयत ठीक नहीं था, वो ठीक ही नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसका काम आप अपना काम फिनिश करने के बाद खुद कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोड शेयरिंग. या हो सकता है तीनों में से एक ने अपना काम ज़्यादा जल्दी फिनिश कर दिया और दूसरे का काम अभी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है जो फर्स्ट वाला जिसने अपना काम जल्दी फिनिश कर दिया, ही विल हेल्प द अदर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लोड शेयरिंग. इसको हम क्या बोलेंगे, लोड शेयरिंग. Okay, after that the point is computational speed up. Computational speed up का मतलब क्या है, a particular computational can be divided into sub computation that can run concurrently. A distributed system allow us to distribute the sub computation among the various sites. These sub computational can be run concurrently and thus provide computational speed up because the same task get distributed to various computer and ultimately load it get distributed. सेम थिंग जो मैंने आपको रिलायबिलिटी में एग्जांपल दिया, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई होता है कि जब आप किसी काम को किसी चीज में डिवाइड कर देते हो, किसी सिस्टम्स में या किसी सब सिचुएशन में डिवाइड कर देते हो, तो वो काम ज़्यादा इजी हो जाता है. और हो सकता है कि किसी के ऊपर ज़्यादा लोड है, तो जो दूसरी साइट है वो इसका हेल्प कर दे और लोड शेयरिंग हो जाए, जिससे क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटेशनल स्पीड है वो बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगी. जो लोड शेयरिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, एक जॉब को दूसरी सिस्टम में मूव कर देती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो इजीली वर्क कर पाता है विदाउट एनी फेलियर एंड इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. ओके, आफ्टर दैट द पॉइंट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन सेवरल साइट्स आर कनेक्टेड बाय अ कंप्यूटेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, यूजर एट वेरियस साइट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन at a low level. Messages are passed between processes in the single computer. Given the message processing, all the higher level functionality found in standard analog system can be extended to and compose the distributed system. Such function include file transfer, login mail and remote procedure calls. Communication क्या होता है, जब हम एक मैसेज को पास करते हैं और एक्सचेंज करते हैं दूसरे सिस्टम के साथ, ठीक है. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड, तो क्या होगा, आप अपना अपना काम बहुत इजीली कर पाएंगे. जो मैसेज शेयरिंग होगी, जो रिसोर्स शेयरिंग होगी, जैसे किसी एक को एक रिसोर्स चाहिए और दूसरे ने उसको रिलीज कर दिया कम्युनिकेशन करके, तो वो जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी और जो हमारा सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा और उस पर लोड कम आएगा अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी. और अगर आप लोग अगर ऐसा हो सकता है कि लाइक 2 सिस्टम और 2 जो यूजर हैं एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं,
तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट अगर हम कम्युनिकेशन के थ्रू बोल सकते हैं कि ये मेरी प्रायोरिटी इस मैसेज को या इस रिसोर्स को यूज करने की ज्यादा है, तो हो सकता है कि दूसरा जो क्लाइंट है या जो यूजर है उसको रिलीज कर दे और आप उसको यूज कर पाए, जिससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। ठीक है। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस। बिल्डिंग अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इज यूजलेस इफ इट्स स्लो लाइक मोलेस। अगर आपका सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट भी है, फ्लेक्सिबल भी है, रिलायबल भी है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है स्केलेबल भी है, बट अगर आपका सिस्टम जो है वो बहुत स्लो काम कर रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। हम खुद फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ पे काम करते हैं, जैसे अगर हम लोग लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं और हमारा जो लैपटॉप का प्रोसेसर है वो बहुत स्लो चल रहा है, हम क्लिक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ही थोड़ा इरिटेट होते हैं उस चीज़ से, तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सके, राइट। तो हम लोग हो सकता है हमारी हार्ड डिस्क में डेटा लोड ज़्यादा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसको रिमूव करने का ट्राई करते हैं। सेम इम्प्लाइज फॉर परफॉर्मेंस। अगर आपके सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, अगर आपका सिस्टम स्केलेबल नहीं हो पा रहा है, आप उस पर काम करेंगे। अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप उस पर काम करेंगे। अगर आपका सिस्टम स्केलेबल नहीं है तो आप उस पर काम करेंगे। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो जो मेन गोल है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का वो क्या है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर हम उनको अचीव कर लेते हैं, वो गोल्स को अचीव कर लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। जो मैसेज पासिंग है, जो रिसोर्स शेयरिंग वगैरह है, जो फेलियर्स कम आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी या आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टिल देन बाय, टेक केयर।